السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا، اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب، وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں۔ ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بیماری ہے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے ہیں جا کے وہاں۔ ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر ایک ہو گئے، میرے خوف سے پیٹ پھاڑنے کے دعوے دار آج پیٹ ملا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا مجرم نواز شریف دل کے علاج کے لیے لندن گیا لیکن وہاں فیکٹریوں کے دورے کر رہا ہے۔ شہباز شریف کی پارلیمنٹ میں تقریر، جاب اپلیکیشن ہوتی ہے، انہوں نے چپڑاسی اور پاپڑ والے کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ٹرانسفر کرائے۔ عثمان بزدار نے 3 سال میں اس ڈرامے باز کے 5 سال سے زیادہ کام کیا۔ پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ سندھ کے ایک لیڈر کو 13 سال بعد بھی اردو بولنا نہیں آئی، آج بھی کہتا ہے کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے۔ وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری پر کڑی تنقید، بلاول کا نام لیے بغیر مزید بولے کہ وہ کہتے ہیں ہم ہیلتھ انشورنس پر نہیں بلکہ اسپتالوں پر پیسے خرچ کریں گے۔ یہ بتائیں 13 سال سے سندھ میں کتنے اسپتال بنائے؟ آصف زرداری چیک بک لے کر لوگوں کو خریدنے نکل پڑے۔ 25 سال سے ان چوروں کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں، یہ جو مرضی کر لیں ان کو سزائیں ضرور ملنے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف، اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ باقیوں نے بھاگنا ہے تو بھاگو، ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ عدم اعتماد کے حق میں مہم چلائیں گے، عمران کو ہٹانے کے لیے ہم مہم چلائیں گے، اور اسلام آباد پہنچتے ہوئے پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ بزدل نہیں ہو، اگر آپ ان عوام سے نہیں ڈرتے ہو تو ہمارا مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا مارچ سے شروع ہونے سے پہلے آپ اسمبلی توڑ دیں۔ ہمت ہے تو ہمارے لانگ مارچ سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج۔ ملتان میں جلسے سے خطاب میں کہا پہلے یہ بزدل لاہور الیکشن سے بھاگا، اب ڈی آئی خان میں امیدوار کو نااہل کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ ہمارے قانونی ماہرین کی بدولت ایک نالائق سینیٹر نااہل ہو چکا۔ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ سے قبل ہی عمران خان کی وکٹیں گرنا شروع ہو چکی۔ اسلام آباد میں پورا ملک ہمارے ساتھ ہوگا، سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ گھر جانے کا وقت آتے ہی عمران خان کی چیخیں آسمان پر پہنچ چکی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا عمران خان کی تقریر نوکری کے ایکسٹینشن کے لیے منتیں تھیں۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہی اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان نے آج خطرناک بننے کی ناکام کوشش کی۔ مفتاح اسماعیل بولے کہ عمران خان عوام کے بعد پارلیمنٹ بھی اعتماد کھو دیں گے، لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ ایم کیو ایم نے ہماری تجاویز سے انکار نہیں کیا۔ دوہری شہریت کیس میں پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا تا حیات نااہل۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر مندوخیل، میاں فیصل اور میاں آصف محمود کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن لڑنے کے لیے جمع کرایا گیا حلف نامہ غلط تھا، اس لیے فیصل وابڈا صادق اور امین نہیں۔ وابڈا کو بطور ایم این اے تمام مراد واپس کرنے کا حکم
फैसल वाबडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस। ऐवान बाला की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। फैसल वाबडा से मुताल्लिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह दावा भी कर दिया कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे पूरे नहीं कर सकती। अपोजिशन की सियासत सिर्फ 50 दिन की है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की अलग अलग सियासत है। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार और हुकूमत के साथ है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। उनके मुकदमात में जान है, इसलिए ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और हुकूमती इत्तेहादियों से मदद मांग रहे हैं। साबिक मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का बरतानी अदालत से शहबाज शरीफ और उनके बेटे को क्लीन चिट न मिलने का दावा एक बार फिर गलत साबित हो गया। बरतानी अदालत की नई दस्तावेज़ात मंजराम पर आ गईं। एसेट रिकवरी यूनिट की तमाम दस्तावेज़ात बेकार निकली। बरतानवी एजेंसी ने तकरीबन 2 साल तक शहबाज शरीफ, बेटे सुलेमान शहबाज और दोस्त जुल्फ़िकार अहमद के खिलाफ तहकीकात की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग या मुजरमाना सरगर्मी का सबूत नहीं मिला। इस बिना पर नवंबर 2021 में उनके तमाम असासे बहाल कर दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की फैसल वाबडा की ताहयात नाअहली पर दरख्वास्त गुजार कादिर मंदोखेल को मुबारकबाद। कहा, वाबडा की नाअहली ने साबित कर दिया कि PTI जालसासों का टोला है। खान साहब के 12 मौसम खत्म हो गए, अब रुखसती का मौसम शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी मशवरा दे दिया कि रुसवाई आई रे के गाने की रिहर्सल शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एबटाबाद बेंच को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों की माफ़ी कबूल करके आइंदा के लिए इंतबाह कर दिया। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत करेंगे तो केस होगा, माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ कर देंगे। जजेस अपना काम जानते हैं। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक ने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दहशतगर्दों को अर्ज़ पाक पर वापस नहीं आने दिया जाएगा। अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों की वाक़यात और सहूलतकारों को भी हर कीमत पर ख़त्म करने का आज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। सिब सलार ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने कौम की हिमायत से हर रंग व नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। अमन बहाली के लिए की गई कोशिशों को सबूताज नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों को बहादुरी से नाकाम बनाने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। मुल्क में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जाँ बहक। 4253 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। गुज़श्ता रोज़ 51,749 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,731 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 29,603 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मेरे खौफ से माजी में एक दूसरे का चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए हैं। पेट फाड़ने के दावेदार आज पेट मिला रहे हैं। पार्लियामेंट में तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, जिनको पेट फाड़ने थे आज उनके पेट मिल रहे हैं। नून लीग ने आसिफ जरदारी को जेल में डाला था, तहरीक इंसाफ ने नहीं। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे।
जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। बिलावल जरदारी पर तनकीद करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सिंध के एक लीडर को उर्दू नहीं आती, वो कहता है सेहत कार्ड पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। सिंध के अंदर पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जिनकी आवाम के इलाज की जिम्मेदारी थी वो लंदन इलाज के लिए जाते हैं। एक मुजरिम अपना इलाज करवाने लंदन गया था, अब वो मुजरिम दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहां, और उसको यहाँ सोचे यहाँ के हमारे कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। वजीर आजम ने कहा कि जरदारी चोरी की चेकबुक से लोगों को खरीदने आ गया है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं कल चला जाऊंगा या परसों चला जाऊंगा। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है कि उसको जल्दी फारिग करो वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। ये कुछ भी कर लें, उनको सजाएं मिलनी हैं। मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया। ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है, तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारिग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। वजीर आजम ने कहा कि बरतानिया में वजीर आजम से पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन में पार्टी क्यों की। कानून की बालादस्ती और फलाही रियासत खुशहाल मुल्कों की बुनियाद होती है। 25 साल पहले उनके खिलाफ जहाज शुरू किया था, मेरा जहाज जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मार्च से कबल असेंबलियां तोड़कर दिखाने का चैलेंज दे दिया। उनका कहना है कि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। देखिए हसन शेख की रिपोर्ट। मुल्तान में लीगी यूसी चेयरमैन राना सजाद के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कठपुतली हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही हुकूमत की विकेटें गिर जाएंगी। अगर इमरान खान अपने आप को बुज़दिल नहीं समझते तो लॉन्ग मार्च से पहले असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन का ऐलान करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना की जब वेव आई तो हमें स्कूल बंद करने नहीं पड़े, और हम स्कूल बंद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, अपना कोर्स के मुताबिक कोर्स को कवर करें, एग्जाम्स हों और जो तालीम का निज़ाम है वो रवा दबा रहे। हमारी जो एक खूबसूरत हिकमत अमली है और हमारी क्यों एक अक्सरियत है नेशनल असेंबली में, तो वहाँ बिल पास हो रहे हैं और सेनेट में भी हमारी हिकमत अमली आपको नज़र आ रही है कि बिल पास हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह वफाकी वज़ीर तालीम